Hello everyone, I am Alicia Nonisa and you're watching Hills Live. Now let's start with today's news. Rotary Club of Haflong Hills celebrates 114th anniversary of Rotary Foundation at Haflong. The Rotary Club of Haflong Hills celebrated 114th anniversary of Rotary Foundation along with the rest of Rotary clubs spread across the world on 23rd February by felicitating two professionals with the Vocational Excellence Award in a solemn function on Saturday. Shri Anup Biswas, senior journalist of the Mahasau, and Shri Neeraj Alam Chaudhary, vibrant promising policemen, were bestowed the recognition in presence of Mr. T.T. Daulagapu, Principal Secretary of North Cachar Hills Autonomous Council. Members of the club also handed over 10 dustbins sponsored by Rotarian Bankim Phonglo, Kaushik Kachari and Loni Jidung, and 300 biodegradable bags with slogans printed on it for awareness on keeping Haflong clean. In a short span of time, Rotary movement has gained popularity in the town with two new members getting included in the club, Mr. M. Hassan Barbuya and Mr. Nitiraj Thausen. Mr. T.T. Daulagapu enlightened the gathering on the Clean Haflong initiative undertaking as a people's participatory movement to bring behavioral change amongst the citizens of Haflong towards developing. रोटारियन की तरफ से उन लोग को थैंक यू बोलने से बहुत छोटा सा ये होगा, तो हमारा दिल में ये रहेगा हमेशा। और उन लोग जो आशा किया हमसे वो करने को भविष्य में भी हम करने को कोशिश करेंगे, डेडिकेटली काम करने की कोशिश करेंगे। और ये जो है इसको हम हमारा जितना भी फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, उनका साथ में शेयर करने को चाहते हैं। More civic responsibility so that Haflong become a well-managed, pristine, clean town. The evening ended with vote of thanks by Rotarian Rajesh Mahajan. पान खाओ और थूको मत। सिगरेट पिया है, सिगरेट का बट को पॉकेट में ढाल के लेके जाओ, घर में जाके डिस्पोज करो। That is also contributing towards clean Haflong. It's not that you have to take a broom and sweep. ऐसा कुछ तो इसलिए awareness चाहिए इसके लिए। तो इसलिए अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग का गवर्नमेंट एज हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। आई एम डेफिनेटली आई हैव टू सिंस आई एम सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, सो ये हमारा सब्जेक्ट भी होता है, तो इसके लिए हम Maibang people to launch agitation against railway apathy. People of entire Maibang subdivision, while expressing serious concern and anguish over the non-responding attitude of the NF Railway Authority, decided to launch a strong democratic agitation very soon. मीडियम के द्वारा कि NF अथॉरिटी ऑफ NF रेलवे कि हमारे जितने भी डिमांड्स है, आज मीटिंग हुआ है वो इशू लेके तो एक डिसीजन लिया है दैट विल बी once again submitting a reminder to the authority, to the GM of NF. अंदर में नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो will be definitely facing an infinite dharna, democratic dharna in NF this Maibang railway station, 15 days. तो will be having dharna in for infinite period. जी बिल्कुल, ये genuine डिमांड है। जिस दिन हम लोग ये रिमाइंडर का जिस दिन हम लोग रिमाइंडर देगा उसी दिन से लेके 15 डेज रहेगा, मतलब आप लोग जल्दी देने वाले? हाँ, विद इन शॉर्ट डेज। वी आर हैविंग 30 नंबर्स ऑफ ट्रेन एट प्रेजेंट, और 4 नंबर का ही 4 ट्रेन का ही स्टॉपेज है यहाँ हमारे फिलहाल माइबांग में। तो अगर सबका स्टॉपेज दिया जाएगा एक्सक्लूडिंग राजधानी दैट वी हैड डिमांडेड, तो उसमें बहुत रेल का भी सुविधा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा उन लोगों का, यहाँ टूरिज्म प्रमोट भी होगा, ये लोकेलिटी के लिए बहुत सुविधा भी मिलेगा। इसलिए हमने ट्रेन स्टॉपेज मांगा था। ये इशू जो डिमांड है अभी का नहीं है, सिंस ट्रेन शुरू हुआ था, ट्रैक शुरू हुआ था यहाँ 2/4/2015 से, एंड पैसेंजर शुरू हुआ था 21 नवंबर 2015 से। तो आप सोच सकते हैं कि सिंस 2015 वी हैव बीन डिमांडिंग हाँ यहाँ पे स्टॉपेज देने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। लास्ट टाइम इवन 26 दिसंबर हमने नवंबर हमने GM का साथ भी मीटिंग किया था, इंक्लूडिंग ऑल द लोकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ का जितना लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग साथ मिलकर ही गया था। वहाँ पे GM चैम्बर में भी वो बात निकला था रिगार्डिंग द इश्यूज 7 नंबर्स ऑफ इश्यूज दैट वी हैड प्लेस। उसने ये एश्योरेंस दिया था विद इन हमको थोड़ा टाइम दो 2 वीक्स जैसा,
मीन्स 2 वीक्स बोलने से दिसंबर 14 का होता है, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं हुआ। तो उसने बोला था आउट ऑफ 7 डिमांड्स स्टॉपेज ऑफ ट्रेन एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू ट्रेन रिप्लेसमेंट ऑफ हिल्सकिन एक्सप्रेस, वो छोड़ के दूसरा जितना भी इशू है कर देगा बोल के बोला था, लेकिन नहीं हुआ है। फुट ओवर ब्रिज भी होने का बात था, वो तो कर सकता है। वो खुद बोला था कि विदिन 15 डेज हमको टाइम दो, हम कर देगा बोल के बोला था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली एक 31 जनवरी को जो 2019 में हमने जनवरी 31 2019 में एक इंसिडेंट हो गया यहाँ पे। अगर फुट ओवर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करता रहा तो वो इंसिडेंट भी नहीं होता रहा। एक इंजन से रेलवे का इंजन, NF रेलवे का इंजन से एक आदमी को कुचल के चला गया, इतना तक नौबत आया। अगर In this connection, a well-attended meeting was held at Maibang Durgabari with Myring Johari in the chair, A.K. Laktasa, President, District Cultural Club, and many more prominent citizens, including merchants, social activists, members from women organizations were also present in the meeting. रेल लाइन जाके भी हम लोग देख के ट्रेन चला गया। ट्रेन इतना बड़ा है, सुंदर है। आगे में हम लोग सोचा था बड़ा लाइन आएगा, हम लोग को उतने मिलेगा, हम लोग भी दिल्ली जाने के लिए, सिलचर जाने के लिए, गुवाहाटी जाने के लिए हम लोग को भी बहुत सुविधा होगा बोल के हम लोग सब भी आशा करा था। देखो अभी हम लोग को क्या करा, किसको दोष है ना, हम लोग को दोष है ना, सरकार को दोष है ना, किसको दोष है? अभी सभी पब्लिक ऐसे सोचता है। हम भी सोचा बड़ा ट्रेन आएगा, हम लोग भी जाने मिलेगा। हम लोग को इधर में माइबंग में जितना आदमी है, बंगाली बोलो, दिमासा बोलो, सब बोलो, बाहर में सब भी एक बच्चा बाहर में पढ़ाई करता है। गुवाहाटी, सिलचर, ऑल असम से बाहर इतना पब्लिक को भी हम लोग पढ़ाता है। यहाँ में हम लोग को दिमासा में इतना It is learned that the people of Maibang have submitted several memorandum demanding stoppage of trains in Maibang railway station, construction of platform number 2, construction of 3 numbers foot over bridge at Maibang railway station, immediate inspection and repairing of the constructed flyover bridge, demand for introducing a new train as a replacement of Hilqueen Express of the MG track, starting of reservation counter at Maibang railway station, local language announcer and recruitment of local educated unemployed youths in NF railway, but even after promising, the railway authority has failed to materialize the same. All the viewers, तो आज हम लोग यहाँ पे माइबंग दुर्गाबरी पे हम लोग जितना भी माइबंग का लोकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस पब्लिक मिलके सब एक मीटिंग बैठा है। तो इस मीटिंग में हम लोग माइबंग रेलवे स्टेशन का जितना भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन हम लोग इधर से गुजरते हैं माइबंग स्टेशन से, फिर भी यहाँ पे स्टॉपेज का भी प्रॉब्लम है। प्लस यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स सिंगल प्लेटफॉर्म से है, प्लस फ्लाईओवर माइबंग को बीचों बीच से ये ट्रेन गुजरता है। फिर भी यहाँ से ईस्ट एंड वेस्ट माइबंग को हम लोग को आना जाने के लिए हम लोग को फ्लाईओवर का एक भी सुविधा नहीं है। उसके वजह से हम लोग को भी बहुत सारा स्टूडेंट्स पब्लिक जो आधा पब्लिक उस साइड पे है और आधा पब्लिक इस साइड पे है, इससे हम लोग को आना जाना बहुत दिक्कत होता है। तो इस सब डिमांड्स को लेकर जितने भी हम लोग को यहाँ पे डिमांड्स है उसको लेकर हम लोग इसमें लास्ट एक फाइनल हम लोग सब मिलकर मीटिंग किया। तो इससे पहले भी हम लोग 3-4 साल पहले से भी इसके बारे में हम लोग जितना भी हो सके, जितना सेंट्रल मिनिस्टर से लेके GM JRM सबसे भी हम लोग मिलके बार हम लोग मेमोरेंडम भी दे चुके हैं, उनसे बातचीत भी कर चुके हैं। फिर भी आज तो हम लोग को कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला है। इसलिए हम लोग आज फाइनल एक डिसीजन लिया, सब मिलके, सब जितना भी माइबंग एरियाज के GBs ऑर्गेनाइजेशन सब पब्लिक मिलके हम लोग इस बीच में हम लोग सब माइबंग का लोकल ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक फाइनल एक मेमोरेंडम हम लोग देंगे, फेस करेंगे। हम लोग को लोकल रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग को माइबंग ईस्ट वेस्ट का MSCs, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट का CM प्लस MLA, हम लोग को MLA का साथ में हम लोग जाके हम लोग जिससे हो सके, चाहे GM DRM जो भी हो, चाहे मिनिस्ट्री लेवल में हम लोग को राजन गोहाई सर जी उसके साथ मिलकर हम लोग फाइनल एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। उसमें हम लोग जैसे कि हम लोग को आपने कहा 15 डेज़ का अल्टीमेटम देंगे, हम लोग डेडलाइन देंगे। जिस दिन हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करें उससे हम लोग 15 डेज़ तक हम लोग उनको टाइम देंगे। अगर उसका बाद भी हम लोग कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला तो हम लोग डेमोक्रेटिक हम लोग को मूव में जाने पड़ेगा, हम लोग धरना बैठेगा, उसके हम लोग डिसाइड किया। थैंक यू। The news from Karbi Anglong.
Pulmun Chowdhury to recommend long-standing demand of Article 244 at UNPFI. Asia representative of United Nations Permanent Forum of Indigenous Issues, Pulmun Chowdhury on Thursday said he would recommend the long-standing demand of the Hills people of Karbi Anglong, Article 244A Autonomous State, to his organization, said during a press conference held at Karbi Anglong Sport Association Conference Hall. ट्राइबल पीपल का मुद्दा सवाल में वहाँ छलफल होता है, तो वो छलफल करने के लिए एशिया महादेश से कौन कौन इश्यू है, कौन सा सवाल है, कौन सा प्रॉब्लम है, वो मैं देख रहा हूँ, उसको कलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं जो अप्रैल में होने वाला एनुअल सेशन में, वो एनुअल सेशन में मैं प्रस्तुत कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ आसाम आया हूँ। यहाँ का एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है जी, यहाँ का जो संविधान में लिखा हुआ है ये ऑटोनोमस के बारे में कि जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी जो हैं, जो कार्बी पीपल हैं, उनको ऑटोनोमस होना चाहिए करके क्लियरली संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए भारत सरकार, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है भारत सरकार वो प्रोविज़न जो लिखा है वही प्रोविज़न अनुसार भारत सरकार काम करेगा, क्योंकि जब संविधान में लिखा हुआ है तो संविधान में लिखा हुआ चीज़ उसको हम सम्मान करना चाहिए। वो हमारा आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी का अधिकार भी है, और संविधान में लिखा हुआ चीज़ वो कार्यान्वयन करना जरूरी भी है। इसलिए मुझे विश्वास है आप लोगों का जो डिमांड है वो पूरा होगा। आप लोगों का अप्रैल में वार्षिक सम्मेलन यहाँ पर जी कार्बनों के इसके ही हुआ? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो जो हमारा वार्षिक रूप में जो सम्मेलन होता है, वो सम्मेलन में विश्व भर के ट्राइबल का सवाल का विषय में वो वहाँ डिस्कशन होता है। तो वो डिस्कशन में आपका कार्बी पीपल का जो भी मुद्दा है, वो जो सवाल है, इस विषय में भी छलफल होगा। एशिया रीजन का मेंबर स्टेट से भी होगा, और ग्लोबली जितने भी वहाँ आएंगे, पत्रकार आएंगे, कानूनविद आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, और ये सामाजिक कार्यकर्ता आएंगे, वो सभी के बीच में ये मुलाकात होगा, छलफल होगा कि हम आदिवासी जनजातियों के बेहतर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम साथ साथ में क्या काम कर सकते हैं, हम साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं हमारा अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। ये एक अच्छा रास्ता ढूंढने का एक निर्देशक के रूप में हम साथ में कैसे जाएंगे, वो छलफल होगा। कार्बी यूथ फेस्टिवल आपने देखा जी, तो इसमें आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? मैंने आगे भी कहा कि कार्बी फेस्टिवल मेरे लिए ये कार्बी पीपल के लिए तो ये एक आइडेंटिटी है, पहचान है, तो इसका बचाना भी चाहिए, इसको निरंतर बनाना भी चाहिए। तो मैंने अभी भी कहा मैं दुनिया का बहुत सारे ट्राइबल पीपल का, आदिवासी जनजातियों का संस्कार, रीति रिवाज, चलन चलती देखा, बहुत दुनिया वो देखा भी, मैंने वहाँ गया हूँ, विजिट किया हूँ, लेकिन कार्बी पीपल का जो ये फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे बेहतर दुनिया में मैं कहीं नहीं देखा इतना अच्छा फेस्टिवल, मतलब रीति रिवाज, संस्कार। तो मैं कार्बी पीपलों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। Special drive against illicit liquor. The staff of Sarkari Bagan Town Outpost conducted special drive against illicit liquor at Sarkari Bagan, Lower Haflong, Sontila, Topodisa area and destroyed about 70 lead sulai on Saturday. Preparation at golf field Umrangso is going on. Chief Minister of Assam, Sarbananda Sonowal, to land in Umrangso. Chief Minister is going to lay foundation stone of ACS Training Center at Umrangso. Likely, as per report, he is going to land at golf course Umrangso. Moreover, the water plane to be opened tomorrow connecting the northeast from Brahmaputra River to Umrangso Reservoir. खड़ा हूँ उमरंगसो गोल्फ फील्ड उमरंगसो मार्केट से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर। तो अभी जो मेरा पीछे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कल 25 फरवरी को आसाम की मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल
यहाँ पे आकर ACS सेंटर का फाउंडेशन स्टोन लेट करेगा। तो यहाँ पे यहाँ का डिमा हसाओ की जनता पूरा यहाँ पे तैयारी कर रहा है, पीछे स्टेज बन रहा है और पूरी तरह से यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं सलमान सोनोवाल को स्वागत करने के लिए। Thank you for watching our channel His Life. Please don't forget to subscribe our channel for more updates. Thank you.